Greetings, fantastic members of the Scholarship Guidebook community. Today's video is your key to unlocking the secrets behind the successful Manaki New Zealand Scholarships 2024 application. Throughout the video, I'll provide comprehensive information on the scholarship summary, scholarship coverage, eligible countries, eligible criteria, documents required, and the step-by-step guide on how to apply. Moreover, I've prepared an online apply video guide in the end of that video, specifically for students who may encounter challenges with the online application process. But before we dive into the video, I encourage you to subscribe to my channel for future updates. If you find the content informative, a thumbs up would mean the world to me. And, of course, if you have any questions, feel free to drop them in the comment section below. Your engagement and support are immensely appreciated. Scholarship Overview. The Manaki New Zealand Scholarships for the academic term of 2024 offer fully funded opportunities designed for international students seeking undergraduate, graduate, diploma, and PhD degrees. This scholarship covers all expenses, including tuition fees, living allowances, medical insurance, travel allowances, and research and thesis expenses for those pursuing research-oriented studies. The online submission deadline is February 29, 2024, and applications submitted after this date will not be considered. The table of contents includes sections on the scholarship summary, coverage, eligible countries, eligibility criteria, required documents, and application procedures. Scholarship Summary. The host country for this scholarship opportunity is New Zealand, offering support for various degree levels, including bachelor's, master's, PhD, and diplomas. The financial benefits provided are fully funded, covering tuition and living expenses. The programs have different durations, ranging from 3 to 4 years for undergraduate degrees, 6 months for postgraduate certificates, 1 year for postgraduate diplomas, 1 to 2 years for master's degrees, and 3.5 years for PhD programs. The application deadline is on the 29th of February 2024. Scholarship Coverage. Full tuition fees. Manaki New Zealand scholarships cover the entirety of tuition fees. Living allowance, stipend. A weekly living allowance of 531 New Zealand dollars is provided to assist with basic living expenses. The stipend is adjusted if the study program commences online in the scholar's home country, accounting for variations in living costs globally. Establishment Allowance. An establishment allowance of 3,000 New Zealand dollars is allocated to cover setup costs in New Zealand, including accommodation, textbooks, or other study materials. Medical Insurance. Comprehensive medical insurance is provided for the duration of the scholar's stay in New Zealand. Tutoring costs. Scholars may receive support for tutoring costs up to the value of 1,000 New Zealand dollars, facilitating additional tutoring if required during their studies. Travel support. Assistance is provided for travel to and from the scholar's home country at the beginning and end of the scholarship, including travel insurance. Travel home during scholarship. Scholars with a duration exceeding 1.6 years are entitled to travel home, allowing for 1 or 2 trips. Reintegration Allowance. 1,000 New Zealand dollars is allocated to assist with setup costs upon the scholar's return to their home country. Research and thesis support. Assistance with research and thesis costs is extended to many postgraduate students. Eligible countries for Manaki New Zealand scholarships. The eligible countries for the scholarship include a diverse range spanning African nations like Ethiopia, South Africa, and Nigeria, Caribbean countries such as Jamaica and Trinidad and Tobago, Asian countries like Myanmar and Indonesia, Pacific nations including Palau and Fiji, and Latin American countries like Venezuela and Mexico. These regions offer a broad spectrum of opportunities for prospective scholarship recipients. Eligibility criteria. Language proficiency. Proficiency in English is must for Manaki New Zealand scholarships. Applicants must demonstrate language competency to ensure effective communication during their studies. Work experience. Candidates must possess either 1 year of full-time work experience,
30 hours or more per week, or 2 years of part-time work experience, up to 29 hours per week. Age requirement: candidates must be 18 years old or older at the commencement of the scholarship. English proficiency requirements for postgraduate qualifications. Overall IELTS score of 6.5 with no band less than 6.0. TOEFL score of 90 on the internet-based test with a writing score of 21. Private academic score of 58 with no communicative skills score less than 50. Cambridge Academic English, Advance, overall score of 176 with no bands less than 169. English proficiency requirements for undergraduate qualifications. Overall IELTS score of 6.0 with no band less than 5.5. TOEFL score of 80 on the internet-based test with a writing score of 21. Private academic score of 50, with no communication skills score less than 42. Cambridge Academic English, Advance, overall score of 169 with no bands less than 162. Documents required. Online application form. Proof of citizenship, passport. CV. Unconditional letter of offer, for PhD applicants. Academic transcripts. Degree certificate. Referee report. English proficiency test score. How to apply. Step 1. Confirm your eligibility before starting your application. Take the Manaki New Zealand Scholarships online eligibility test to ensure you meet the criteria. Upon confirmation of eligibility, you'll receive an eligibility code. Step 2. Register for a Manaki New Zealand Scholarship account if eligible. Click the Register button on the web page to create your Manaki New Zealand Scholarship account. Enter your email address, which will serve as your username, and an eligibility code. Complete the account details and select Register. Step 3. Set password for your account. Follow the link sent to your email to set a password and finalize the registration process. Check your spam folder in case the email is filtered there. Step 4. Complete and submit your application. Access the Manaki New Zealand Scholarship online application system using your account anytime between the opening and closing dates for your country. Ensure your application is submitted before the specified closing date. For additional information, please visit the official website of Manaki New Zealand Scholarships. Online application video guide. For students facing challenges with the online application process, I have created an instructional video, but please show your support by liking the video, subscribing to my channel, and leaving comments with any questions you may have. Thank you, and much love to all. Let's start online apply process. स्टूडेंट्स, इस पेज पे आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे आके अपनी चेक एलिजिबिलिटी करनी है। चेक एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना जो है ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पे एंटर कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना कंट्री सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसको करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इस पेज के ऊपर आने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछ रहा है एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। उन्होंने पूछा है कि आर यू सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैंने कह दिया यस। उसके बाद उसने पूछा है कि आर यू सिटीजन ऑफ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ न्यूजीलैंड, इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज बताया हुआ है कि ज़ाहिर है वो नहीं हूँ, मैंने यहाँ पे इसका भी नो कर दिया। फिर उसके बाद उसने तीसरा मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कि जी आप 1 फरवरी से लेके इस कंट्री में 2 साल से ज्यादा आप अभी रह रहे हैं, मैंने इसको कहा यस। फिर इसने मुझसे पूछा हुआ है आर यू मेंबर ऑफ अ डिप्लोमेटिक कॉर्प्स, इस टाइप की इसने चीजें पूछी हैं, मैंने उसका भी कह दिया नो। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा कि स्पेसिफाई करें कि आप लास्ट 2 ईयर्स के अंदर अपनी कंट्री से कितनी देर बाहर रहे हैं, तो मैंने इसको 0 कर दिया। अगर आप कुछ टाइम बाहर रहे हैं, अगर आपके पासपोर्ट पे इस तरह की कोई चीज़ है तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर दें, 3 मंथ 6 मंथ जो भी आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। इसके बाद इन्होंने पूछा हुआ कि आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है 12 मंथ से ज़्यादा है फुल टाइम या 24 मंथ्स जो है वो पार्ट टाइम, तो इसको मैंने इसको यस फिलहाल कर दिया। आप अपने हिसाब में इसको यस या नो करें। फिर उसके बाद उन्होंने मिलिट्री का पूछा, मिलिट्री में है तो मैंने उसको नो कर दिया है। फिर नीचे उन्होंने पूछा अगर आपने प्रीवियसली अगर आपने मनाकी न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई किया हुआ है, तो मैंने इसके अंदर उसको यहाँ पे भी कह दिया है नो। फिर उसने नीचे भी इसी तरह का उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि आपने पहले आपने मनाकी न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप वगैरह ली हुई है, तो मैंने इसको भी नो कर दिया है। इसके बाद आपने अपने यार आपने नहीं ली हुई, आपने इसको नो ही करना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है और आपने चेक माई एलिजिबिलिटी इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए उन्होंने बताया कंग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ मनाकी न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप्स। इसके लिए अब मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूंगा। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी इसने मेरा जो ईमेल था वो पहले ही इसने पिक कर लिया है। उसके बाद अभी मैं इन चीजों को फिल करता हूँ, मैं आपको फर्दर बताता हूँ कि फिर आपने क्या करना है। यहाँ पे देखें ऊपर तो उन्होंने आपका जो ईमेल आपने शुरू में आपने दिया था वही उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। नीचे फिर आपने अपना नाम लिखा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर उसके बाद उन्होंने आपका प्रेफर्ड नेम पूछा, इसको आप छोड़ दें। फिर उन्होंने एलिजिबिलिटी कोड है वो खुद ही जनरेट कर लिया। नीचे जेंडर, फिर उसके बाद आपने नीचे अपना रेजिडेंस एड्रेस लिखना है, एड्रेस अपना पूरा लिखें। उसके बाद यहाँ पे सिटी के बाद कंट्री, उसके बाद उसका पोस्टल कोड, यहाँ पे अपने सिटी का वो आप गूगल से चेक कर सकते हैं। मैं लाहौर लिखें, लाहौर पोस्टल कोड वो आपको बता देगा। इस तरह फैसलाबाद पोस्टल कोड वो बता देगा, वो यहाँ पे ला के लिख दें। नीचे उन्होंने फिर यहाँ पे बताया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन, डू यू आइडेंटिफाई एज अ डिसेबल्ड पर्सन और अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो आप इसको टिक कर दें, वरना इसको छोड़ दें। नीचे फिर आप अपना जो है वो मोबाइल नंबर या अपना मोबाइल ही करके लिख लें जो प्राइमरी है, और प्लस सेकेंडरी है वो भी अगर आप मोबाइल ही कोई और है आपके पास वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा कोई डिपेंडेंट वगैरह आपके हैं तो आपने उसको नो कर दें, यस कर दें, या आपको पता है। उसके बाद नीचे फिर आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला, आपने वहाँ से 2-3 चीज़ों को टिक कर देना है। टिक करने के बाद उन्होंने पूछा आप कोई और भी चीज़ हमें बताना चाह रहे हैं, प्लीज एंटर अ कमेंट्स इफ यू हैव सिलेक्टेड अदर। यहाँ से अगर आप अदर को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप उनको यहाँ पे कुछ बता सकते हैं कि जी आपको कहाँ से पता चला। तो इसको बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना। अभी उन्होंने मुझे कहा कि चेक योर ईमेल। ये देखें मुझे एक ईमेल रिसीव हुई है। अभी मैं इसके ऊपर जाता हूँ, इसको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करूंगा। सबसे पहले ये जो मेरा यूजर नेम है उन्होंने मेरा ईमेल ही इसको यूजर नेम बता दिया। यहाँ पे जाके मैंने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है। उसके लिए जैसे जब यहाँ पे सारे यहाँ पे ये टिक लग गए, इसका मतलब है कि आपने अपना जो पासवर्ड है वो ठीक सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके चेंज पासवर्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। अभी आप इस पेज के ऊपर आ गए हैं। इस पेज के ऊपर आके आपने अपने जो है एप्लीकेशन है इसको स्टार्ट करना है अप्लाई करने के लिए इस स्कॉलरशिप के अंदर। ये देखें लिखा हुआ है न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप्स। आपने अप्लाई के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। उन्होंने उसकी क्लोजिंग डेट दी हुई है कि 29 फरवरी 2024 को इसकी जो है लास्ट डेट है। आप अप्लाई के बटन पे यहाँ पे क्लिक करें। अभी हम स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आ गए हैं। आप इन सारी जो फॉर्म को मैं 1 बाय 1 फिल करता हूँ। फिल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने भी इसको फिल करना है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अब मैंने इसको इंट्रोडक्शन को सबसे पहले मैं फिल करूंगा। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अपनी पर्सनल डिटेल ये सारी इसने पहले ही वहां से पिक कर ली है, नेम वगैरह, आपका जो ईमेल एड्रेस है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ। फिर आपने कंट्री को सिलेक्ट किया। कंट्री में आपने अपना जो सिटीजनशिप उसको पाकिस्तान, नीचे जो 2 है उसको आप छोड़ दें, अगर आपके पास है तो इसको कर दें। फिर नीचे उन्होंने पूछा हुआ है कि आप कोई मेंबर हैं डिप्लोमेट के वगैरह के, तो आपने इसको अगर आप हैं तो यस कर दें, वरना इसको नो, इसको भी ना टिक करें। फिर अगर आपने 2 साल इससे पहले 2 साल अगर आप किसी और आप कंट्री में आपने विजिट वगैरह किया या गए हैं तो उसका आप लिखें कितनी देर के लिए जो आपके पासपोर्ट पे है, वरना कुछ नहीं है तो आप इसको 0 कर दें। अगर इसको आप कुछ करते हैं 1 इस तरह करके तो फिर आपने इसकी वहाँ पे डिटेल बतानी है। नीचे फिर उन्होंने आपका मिलिट्री से आपका ताल्लुक है तो आप यहाँ पे इसको टिक कर दें, टिक नहीं है तो इसको छोड़ दें। फिर आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसके ऊपर आ जाएंगे पोर्शन के ऊपर प्रपोज स्टडी प्रोग्राम। प्रपोज स्टडी प्रोग्राम के अंदर आके आपने सबसे पहले तो आपने विच सेक्टर इज द प्रपोज स्टडी मोस्ट रेलिवेंट टू, ये सबसे पहले तो आपके पास ये वाली चीज आएगी। तो आपने यहाँ से गवर्नेंस को सिलेक्ट कर लिया जिसके अंदर आपने एडमिशन लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से फर्ज किया जो आपकी जो फील्ड बनती है वो यहाँ से आपने
सिलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ से गवर्नेंस को सिलेक्ट किया है। आप जब भी इसमें से किसी को करेंगे तो नीचे फिर उसके फर्दर उसके जो हैं डिटेल्स सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। यहाँ से फिर मैंने एक को सिलेक्ट किया पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, फिर उसके बाद मैंने उसकी लेवल ऑफ स्टडी वहाँ से मास्टर को किया। फिर उसके बाद नीचे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड को कर लिया। नीचे फिर क्वालिफिकेशन ये 2 उसमें दे रहा है इस गवर्नेंस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो मैंने मास्टर ऑफ मैनेजमेंट कर लिया। इसमें दूसरा था मास्टर ऑफ कॉमर्स। फिर सेकंड चॉइस उसने पूछी है कि फिर मैंने इसको यहाँ से गवर्नेंस किया। यहाँ से फिर मैंने अकाउंटिंग को सिलेक्ट किया। अकाउंटिंग के बाद मैंने फिर यहाँ से कोर्स जो है वो मास्टर किया। उसके बाद फिर मैंने ऑकलैंड, फिर यूनिवर्सिटी, फिर मैंने नीचे जो इसके अंदर से मैंने जो कोर्स सिलेक्ट किया मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग, मैंने इसको सिलेक्ट किया। फिर इसको मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अभी ये जो है मेरी स्टडी हिस्ट्री के ऊपर आ गया है। यहाँ पे मैंने इसने मुझसे पूछा है व्हाट क्वालिफिकेशन आर यू करंटली स्टडिंग। मैंने इसको अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसको कर दें, वरना मैंने यहाँ से इसको नन कर दिया है। अपने हिसाब में आप यहाँ से करें। फिर उसके बाद उसने पूछा है आपके पास कौन सी जो हाईएस्ट डिग्री है। मैंने यहाँ से बैचलर डिग्री कर दी है। आप भी अपने हिसाब में करें। अगर आप अपने पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो फिर यहाँ से मास्टर कर दें, और अगर बैचलर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ से सेकेंडरी स्कूल कर दें। नीचे यहाँ से नीचे फिर आ जाए। नीचे उन्होंने पूछा है आर यू प्रीवियसली रिसीव्ड अ न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप। मैंने इसको यहाँ से नो कर दिया। तो उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पे आपने जितनी अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो यहाँ पे बतानी है। सबसे पहले आपने नेम ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को सबसे पहले लिख दें। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी जो थी मेजर जो था वो आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद नीचे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम। उसके बाद आपने आपका जो इंस्टीट्यूट कहाँ पे है वो आपने पाकिस्तान यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, इंडिया पाकिस्तान जो आप करना चाह रहे हैं, जो कंट्री है आपका। तो उसके बाद उसने पूछा है कि आपने ये कंप्लीट कर ली। मैंने इसको कहा यस। फिर कब आपने स्टार्ट की थी, कब आपने फिनिश की थी, वो जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह पे लिखा हुआ है उसको यहाँ से देख के लिखें। फिर यहाँ पे आपने अपना जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है और उसका जो ट्रांसक्रिप्ट और उसके साथ जो उसकी डिग्री है दोनों को एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको यहाँ पे अटैच कर दें। फिर नीचे आए। नीचे आने के बाद आप अपनी सेकंड क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप जितनी मर्जी चाहें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल यहाँ पे सेकंड की है। उसका मैंने लिख दिया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। बैचलर के बाद मैंने किया है, उसका मैंने अकाउंटिंग में किया है। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, वो पाकिस्तान से किया है। उसके बाद वो मैंने कंप्लीट कर लिया। वो मैंने स्टार्ट कब किया है, फिनिश कब किया है। उसके बाद मैंने उसका भी जो है उसकी भी जो ट्रांसक्रिप्ट थी, उसका जो डिप्लोमा था, सर्टिफिकेट था, वो भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने पूछा है वाज दिस स्टडी फुली फंडेड थ्रू अ स्कॉलरशिप। मैंने इसको कह दिया है नो। इस यहाँ जो पहले भी उसने पूछा था वाज दिस स्टडी फंडेड थ्रू अ स्कॉलरशिप, मैंने इसको भी कह दिया है नो। अगर आपने इस तरह करके अगर आपने स्कॉलरशिप वगैरह के जरिए आपने वो स्टडी वगैरह की है बैचलर की और कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो फिर उसको यहाँ पे आप यस भी कर सकते हैं। जब आप यस करेंगे फर्ज किया तो यहाँ पे फिर वो आपसे पूछेगा कि आपको किसने स्कॉलरशिप दी, कंट्री कौन सा था, कहाँ से आपने स्कॉलरशिप ली, सारी इसकी। और ये प्लस पॉइंट होगा आपका, इसलिए कि आपको पहले भी कहीं से स्कॉलरशिप मिली हुई है, आपने स्कॉलरशिप की बेस पे आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया या आपने बैचलर डिग्री की है, तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जाने के बाद अभी हम इसके ऊपर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये वर्क हिस्ट्री का पूछ रहा है। यहाँ पे आपने अपनी वर्क हिस्ट्री बतानी है कि जो आपने किया हुआ है। यहाँ पे ऊपर उन्होंने बताया हुआ है, तो अगर तो आप फ्रेश हैं, अगर आपने अभी अगर आपने इंटरमीडिएट किया और बैचलर में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको रिमूव के बटन पे क्लिक करें और आगे निकल जाएं। लेकिन अगर जैसे ही आपने फंस गया, आपने अंडर ग्रेजुएट किया है तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, या आपने पहले कोई बस आपने स्टडी बाद में शुरू कर दी है इंटरमीडिएट के बाद, तो फिर भी आपके पास कोई नहीं है तो इसको आप रिमूव रहने दें। लेकिन अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, कोई आपने बेशक आपने इंटर्नशिप वगैरह भी की हुई है, थोड़ी सी भी की हुई है, तो उसको भी यहाँ पे लाजमी अटैच करें। ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर कुछ भी नहीं है, फिलहाल आप फ्रेश हैं, तो आप इसको रहने दें, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो मैंने यहाँ पे किया, जैसे देख लें, मैंने यहाँ पे कर दिया कि जी मार्केटिंग मैनेजर को टाइटल लिख दिया, फिर उसके बाद पेड था, उसके बाद फुल टाइम था, उसके बाद कंपनी कौन सी थी वो भी मैंने ऐड कर दी, उसके बाद लोकेशन कौन सी थी, उसके बाद करंट में नहीं कर रहा,
मैंने स्टार्ट कब किया, मैंने फिनिश कब किया, वो ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की थी, फिर उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज मैंने वो यहाँ पे ऐड कर दी। इसके बाद मैं 2 एक और भी ऐड कर सकता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी मैं चाहूँ यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। 3 माह मैंने यहाँ के ये किया, 5 माह यहाँ पे किया, इस तरह करके सारी डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अभी ये नेक्स्ट मेरा पोर्शन आ गया डेवलपमेंट रेलेवेंस। इसके ऊपर उन्होंने बताया हुआ है कि कीप योर आंसर कंसाइज एंड विद इन द करेक्टर लिमिट। तो ये इसको दें। उन्होंने बाकी इसकी जो चीज़ें बताई हुई हैं कि इस तरह करके आप सही तरीके का चेक थ्रू रेफरेंस के ज़रिए दें और ओरिजिनल वर्क वगैरह का आप बताएं। मेक श्योर दिस इज़ योर ओन ओरिजिनल वर्क। और नीचे फिर उन्होंने बताया हुआ है व्हाट स्किल एंड नॉलेज डू यू होप टू गेन फ्रॉम योर प्रपोज स्टडी प्रोग्राम। अच्छा, ये जो आपने अभी अपना स्टडी प्रोग्राम जो आपने चूज़ किया है इसका बता रहे हैं कि आपको क्या स्किल आप इसके ज़रिए आप हासिल करेंगे। वो हमें ज़रा इसके बारे में आप बताएं कि आप क्या तवक्का रखते हैं कि आपको इससे क्या हासिल होगा। ज़रा आपने अपने वर्ड्स में इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर नीचे जो उन्होंने लिखा हुआ है इसका उन्होंने लिखा हुआ है, इसके अंदर आपने उनको बताना है कि ये आपकी जो कंट्री डेवलपमेंट के लिए किस तरह अहम है और आपने उसको ये प्रूव करना है रिसर्च के साथ, डाटा के साथ और आर्गूमेंट देने हैं और देने बड़े शॉर्ट हैं। आपने 1200 अल्फाज में इसको बयान करना है और ये बहुत ही अहम पोर्शन है। इन चीज़ों की बुनियाद पे उन्होंने आपको स्कॉलरशिप देनी है। मैं आपको पहले बता दूं, जो डिग्री आपकी है वो तो मैटर करनी है लेकिन वो कम मैटर करनी है, ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा मैटर करने हैं। तीसरा फिर उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि आप ये जो नॉलेज है इसको किस तरह आप कंट्रीब्यूट करेंगे डेवलपमेंट योर होम कंट्री। बेसिकली वो चाह रहे हैं कि आप ये स्टडी करें और अपनी कंट्री में वापस आएँ और 2 साल तक आप अपनी कंट्री के में सर्व करें जो आपने स्टडी न्यूजीलैंड में की है। बेसिकली उनका इसलिए वो आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज। इसको भी आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आने के बाद ये वाला जो पोर्शन है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये बहुत अहम है। जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है कम्पिटेंसी क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे उन्होंने आपको ये बताया भी हुआ है दैट आर इम्पोर्टेंट टू योर फ्यूचर सक्सेस एज अ मनाकी न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप या स्कॉलर। तो ये उन्होंने बड़ा अहम बताया। इसके अंदर उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि आपने हमें सिचुएशन वगैरह को डिस्क्राइब करें जो आपने कंप्लीट की हो और आपने उसको पूरी तरह आपने पूरा किया है और आपने उसको कैसे पूरा किया, ये हमें उस सिचुएशन के बारे में बताएं। पहले तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि क्या आपको मसला था, फिर आप प्रॉब्लम थी, फिर आपने उसको कैसे आपने उसको टैकल किया और कैसे आपने उस मसले को सॉल्व किया। ये उन्होंने चीज़ें नीचे उन्होंने एक्सप्लेन भी की हुई है। डिस्क्राइब द एक्शन यू टुक, आपने कौन से आपने एक्शन लिए। पहले आपने सिचुएशन को डिस्क्राइब किया, फिर आपने एक्शन को आपने उनसे कौन से लिए, फिर उसका जो नतीजा वगैरह आया वो आपने यहाँ पे करना है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि ये आपका इनफ डिटेल हो और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो, जो अंडरस्टैंडेबल हो जो इसको पढ़ रहा है। फिर नीचे उन्होंने उसके बाद में उसकी बाकी चीज़ें भी बताई हुई हैं। आप इनको पढ़ लें, बड़ी आसान सी चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएगी। फिर नीचे उन्होंने उसका बताया हुआ है डिस्क्राइब द सिचुएशन। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं। फर्स्ट किया मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आपने डिसाइड किया या किया था पहले कि जी आपने स्टॉक मार्केट के अंदर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि मैंने ये वाला मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने इस तरह करके उसके शेयर खरीदने थे। फिर नीचे बताएं कि जी आपने जो एक्शन क्या लिए, कि आपने एक्शन ये लिए कि जी आप उनका आपने सबका तो इंटरनेशनल जो कंपनी जिसके आपने शेयर खरीदने थे नेस्डैक के अंदर आपने 10 कंपनीज का डाटा इकट्ठा किया। डाटा इकट्ठा करने के बाद आपने उनका पास्ट का एनालिसिस किया, जो टेक्निकल एनालिसिस भी आप उसको कह सकते हैं या दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस भी आप कह सकते हैं। दोनों तरीकों से आपने उसका एनालिसिस किया। आपने उसके शेयर्स को चेक किया, आपने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को चेक किया और चेक करने के बाद आपने जिसका आपको बेस्ट पॉसिबिलिटी लगी ये आपने तरीके इस्तेमाल किए उनकी एवेल्युएशन के लिए या फिर उनके जजमेंट के लिए कि किस स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए। और फिर उसके बाद आपने एक स्टॉक को खरीदा और वो स्टॉक जो था वो बाद में वो बड़ा अच्छा साबित हुआ और उसने बाद में बड़ा आपको फ़ायदा दिया, या वो अच्छा साबित नहीं हुआ इसलिए मार्केट ने
उसको अमेरिका में जो नेस्डेक था उसकी वजह से, जो भी इस तरह की सिचुएशन आप बना के लिख सकते हैं, कोई इसके अंदर नहीं है, आपने अपने अल्फाज में लिखना है। इसको लिखने के बाद आपने इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद उन्होंने जो अगला जो उन्होंने क्वेश्चन बताया, उन्होंने सेल्फ ड्राइव बताया हुआ है। ये भी वैसे ही है, तकरीबन मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट इसमें इन्होंने डाला है। इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है, देखें इसमें अंदर उन्होंने बताया हुआ है, डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन यू हैड मोटिवेट योरसेल्फ टू अचीव विदाउट एनी प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स और अदर। इसका मतलब ये है कि वो आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अब अपना कोई प्लान बनाया है कि जी मैंने ये काम करना था और मैंने किया है। वो आपको आपकी फैमिली वगैरह की तरफ से आपको नहीं बताया गया या फोर्स नहीं किया गया। फर्ज किया आप कह रहे हैं कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन आपको किसी ने नहीं बताया, तो ना आपको कोई कह रहा है, लेकिन आप खुद करना चाह रहे हैं, तो आपने खुद वो किया और उसको आपने डिस्क्राइब द सिचुएशन उन्होंने कहा है। फिर व्हाट एक्शन डिड यू टेक टू मोटिवेट योरसेल्फ, कि आपने कौन से एक्शन लिए कि जिस तरह से आपने उसको मोटिवेट आपने उसको किया कि जी ये मुझे लाजमी करना चाहिए, ये आप यहाँ पे देख लें। फिर उसके बाद आपने फर्ज किया जी आप उसके अंदर जब आप आपने कोई काम किया वो वाला, जैसे आपने कोई फर्ज किया आपने इंटरनेट के ऊपर मार्केटिंग को आपने इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ें वगैरह सेल करनी शुरू की और आपकी वो चीज़ें ज़्यादा सेल होना शुरू होगी, तो इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। फिर इसका नतीजा क्या आया, इस तरह करके आप यहाँ पे इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बड़ा आसान सा है, बस थोड़ा सा आप अपने सोचें और इसको लिख दें अच्छे अल्फाज में, तो ये भी आपका हो जाएगा। बड़े आसान से सवाल हैं, आप आसानी से इन सवालों के जवाब आसानी से अच्छे अल्फाज में दे सकते हैं, तो ये बड़े अहम है। इसी बेस पे आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलनी है। उसके बाद अभी जो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, स्टडिंग ओवरसीज। इसके ऊपर उन्होंने पूछा हुआ है कि हमें ये बताएं कि आपने न्यूजीलैंड को स्टडी के लिए क्यों चूज किया है, तो इसके अंदर आपने उसकी रीजन बतानी है, मतलब आप अपने हिसाब में बता सकते हैं। फिर आगे उन्होंने पूछा हुआ है अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर हमें बताएं कि कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और नतीजा आने के बाद आप एक डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं तो किस तरह आप इस चीज़ को भी आप मैनेज करेंगे, तो इसका भी आपने यहाँ पे आंसर देना। ये भी आप अपने अल्फाज में दे सकते हैं, आपको बेहतर पता है आप किस तरह आप इसका आंसर देंगे। इसको करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे फिर क्लिक कर देना। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद अभी ये डिक्लेरेशन आ गया है। डिक्लेरेशन पे आने के बाद आपने इन सबको बारी बारी टिक करना है, जितनी भी ये चीज़ें आप इनको सबके ऊपर एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको भी एग्री करें, नीचे आ जाएं, नीचे आने के बाद इसको भी एग्री करें और इसको भी एग्री करें और नीचे फिर आए, फिर दोनों को भी एग्री करें। एग्री करने के बाद बस आपका ये कंप्लीट हो गया है। अभी आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है और आपकी जो है ये स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है उनको फॉरवर्ड हो